Hello and welcome to Ignited Minds. Welcome to the YouTube channel and welcome to the Hindu newspaper analysis of 6th of the August 2024. The news articles which are highlighted on your screens will be discussed in detail with both aspects of static and current dimensions. Also, there are some articles which are from the prelims perspective and some are there with the mains perspective. For example, this article talking about the atomic clocks, sundials, and the piezoelectric current. We will discuss this in terms of prelims. And the article from NCRTs, which talks about the preamble, will be discussed in the constituents, what are there in the preamble. Further, we will also see what was the lab chemicals hike of custom duty and what are the issues with respect to the alcohol delivery at doorsteps, allowing the platforms like Swiggy, Zomato, and others to deliver alcohol at doorsteps. There is an issue of domestic violence, and editorial is on that also, and an update or the current situation of Israel, Iran, and Palestine or Gaza, the triangle, and the Lebanon. What are the angles which are updating recently? Further, there will be an in-depth discussion on Bangladesh, its crisis. हम सबको पता चला कि शेख हसीना जी वहां से चली गई, वो इंडिया में लैंड कर गई. Then she is seeking asylum of UK. We'll also see what are the effects and what are the provisions with respect to inclusion of the OBC in the OBC list. What states can do and what is the recent case of Delhi Corporation and what Supreme Court's decision is on Delhi municipal committees. Let's begin the discussion. And I want you to imagine that how from the ancient times and from the medieval times of calculating time, we came from these sundials or the large sundials, the Jantar Mantar, which is a sundial, और जिसको हम बोलते हैं सम्राट यंत्र. This is world's largest this sundial. ठीक है, it's in Jaipur and it was built by Raja Savai Jai Singh. कैसे हमने यहाँ से प्रोग्रेस करके एटॉमिक क्लॉक्स तक पहुंच गए एंड ये चीज बनाई किसने थी? दिस इज बेसिकली जंतर मंतर. जंतर मंतर है क्या असल में? जंतर मंतर मीन्स अ कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जंतर मंतर का मतलब ही है अ कैलकुलेटिंग इंस्ट्रूमेंट. जंतर मंतर असल में बनाया किसने? राजा सवाई जयसिंह ने. जैसे मैंने आपको बताया, ये किस लिए बनाया गया था? फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस, looking at the astronomy, looking at the shapes and the formations in sky with respect to galaxies and stars. ठीक है. Now this sundial, the Samrat Yantra, is the largest sundial of the world. ठीक है. And here you can see astronomical positions with naked eyes. ठीक है. ये एक्चुअल में अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है. ठीक है. दिस वाज बिल्ट इन 19th century, uh, not in 19th century but in 18th century, the first half of the 18th century it was built, and later in the 19th century it was a major part of it got destroyed. ठीक है. तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि ये यंत्र क्या है और किस लिए है. ये बेसिकली क्यों बनाया गया था? बिकॉज देर इज अ कैलकुलेटिंग यूनिट कॉल्ड एज ZIJ, which was used in medieval times. ZIJ was a unit to determine the position of celestial objects. ठीक है. जो आसमान में चीजें दिखती है, हमें एस्ट्रोनॉमी में जो चीजें दिखती है, उनका पोजीशन डिटेक्ट करने के लिए वी यूज दिस unit called as ZIJ. And सवाई जयसिंह फाउंड दैट देयर इज सम मिसकैलकुलेशन, और कुछ चीजें यहाँ पे मिस हो रही है. लाइक कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ डेज का फर्क आ रहा है with respect to the unit and the table which was associated to the unit.
ठीक है, कि इस इन दोनों के बीच में देर वॉज डिफरेंस, माइनर डिफरेंस, ठीक है। एंड ही ट्राइड कि मैं एक नया एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाऊं, मैं एक नया एस्ट्रोनॉमिकल कैलेंडर बनाऊं। तो उन्होंने बनवाया क्या? जिजे मोहम्मद शाही। ठीक है, he got this commissioned Zijay Mohammad Shahi, and this Zijay Mohammad Shahi was a calendar, and this was used for entire century in India। और रिसेंटली भी ये, मतलब अभी तक भी ये यूज होता है थोड़ा बहुत इन दी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि एंशियंट टाइम्स में ये लोग क्या करते थे, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ आवर इंडियन आर्ट एंड कल्चर। यहाँ तक मैंने आपको बताया, बट इमेजिन वहां से वी फॉर्म्ड दी क्लॉक्स, विंटेज क्लॉक्स, लाइक जो पीजो इलेक्ट्रिक करंट पे चलते हैं। देन वी ट्राइड टू मेक दी, you can say, the nuclear clocks, which are next generation clocks. We are also trying to make the atomic clocks। ठीक है, these atomic clocks, they are the next generation clocks। ठीक है, and these nuclear clocks, they are the next generation clocks। And why do we make them? Why are we inventing these things? Because there is an issue। The issue is the issue of calculation and the urge of humanity to calculate correctly। सी, हमें ऐसा समझ में नहीं आएगा हमारे अगर जैसा हमें, हमने एक कॉमन कैलकुलेशन हमारे पास है, 364 डेज का ईयर होता है, 24 घंटे का दिन होता है, 60 मिनट का एक घंटा होता है, और 60 सेकंड का एक मिनट होता है। ठीक है, बट when we talk about the scientific research, when we talk about astronomy, the seconds and पीजो सेकेंड्स, मतलब छोटे से छोटा अमाउंट भी सेकंड का, वो भी कैलकुलेट होता है। द मिलियंथ ऑफ द सेकंड इज आल्सो कैलकुलेटेड, एंड वंस इट वेरीज, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि 10 रेज पावर 10, 10 टाइम्स और 100 टाइम्स और मिलियन टाइम्स, दिस इज द कैलकुलेशन जहां पे वी ट्राई टू कैलकुलेट द ऑपरेशन ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, द क्यूबिट्स। ठीक है, दैट इज वाई दिस थिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल में क्यों नहीं लेके जाना चाहता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इवॉल्व आर वी इन कैलकुलेटिंग टाइम। लेटर देर इज एन इन डेप्थ एडिटोरियल ऑन दिस थिंग ओनली, दैट हाउ humanity progressed from sundials to atomic clocks, and now to nuclear clocks we are shifting। So just wait for a second till we reach the editorial, and then we see what are the nits and grits of this editorial। Now this slide, वी यूजुअली हैव दिस ट्रेडिशन, हमने ये आज तक कभी मिस नहीं किया है, नेवर, कि हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का पीवाईक्यू स्टार्ट करें और एंड करें यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन से। ठीक है, और इस बार का जो क्वेश्चन है, दिस वाज अबाउट डिजिटल रूपी। ठीक है, मैं बता रहा हूं आपने ये पढ़ा ही नहीं है, और बिसाइड्स दिस की ये कम से कम 8 से 10 बार एडिटोरियल में आ गया था लास्ट ईयर, फिर भी आपने नहीं पढ़ा ये। ठीक है, फिर भी आप एग्जाम में पहुंच गए और आपको याद नहीं आ रहा है डिजिटल रुपी क्या है। तो आप क्या करोगे? इट इज अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई इन अलाइनमेंट विद इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, चलो डिजिटल रुपी है, चाहे कोई भी रुपी हो। ठीक है, चाहे ये डिजिटल रुपी हो, ये पेपर रुपी हो, ये करेंसी हो, ये कॉइन हो, ये जो भी हो। ठीक है, हमने मान लिया whether it's a sovereign currency or not, yes, it should be sovereign currency। whatever is issued in country, it should be sovereign currency। if it's not sovereign currency, if it's not fiat currency, then it does not hold any value। like crypto currency को हम नहीं बोल सकते that it's sovereign currency। ठीक है, वैसे ही it appears as a liability on RBI's बैंक बैलेंस शीट। नहीं पता है आपको कि ये आरबीआई के बैलेंस शीट में फिगर आउट करती है या नहीं, छोड़ दो इसको। It is insured against the inflation by its very design। कोई भी करेंसी, कोई भी करेंसी जब मार्केट में आती है, तो इन्फ्लेशन का जो काम है वो मार्केट का काम है, वो करेंसी का काम नहीं है। वो प्रोडक्ट का काम नहीं है कि एक प्रोडक्ट बाय नेचर ऑफ इट्स प्रोडक्ट, बाय नेचर की ये प्रोडक्ट एक मग है, बाय नेचर की ये प्रोडक्ट जो है सॉल्ट है।
ये इन्फ्लेशन से बचेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कि ये इसका डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि इस पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट नहीं आएगा। इन्फ्लेशन मार्केट का काम है, वो मार्केट देखता है, डिमांड एंड सप्लाई देखता है, वो एक परसेप्शन है लोगों का। ठीक है, वो एक इमोशन है मार्केट का। ठीक है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन। हाँ, इन्फ्लेशन इज इंडेक्स्ड। ठीक है, आपने सुना होगा दैट इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स आर देयर, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर वो चीज होती तो हम यहां बोल सकते थे दैट इट्स इन्फ्लेशन इंश्योर्ड बाय इट्स डिजाइन। इट इज फ्रीली कन्वर्टेबल अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। ठीक है, अगर डिजिटल रुपी है और इसको कन्वर्ट करना है कमर्शियल मतलब पैसे में, कैश में, लॉजिकल सी चीज है कि अगर ये कन्वर्टेबल नहीं होगी तो ये चलेगी नहीं, चाहे ये कुछ भी हो। अगर ये कन्वर्टेबल नहीं होगी तो ये चलेगी नहीं, और अगर ये चल नहीं रही है तो आरबीआई इसको लाएगा ही क्यों। ठीक है, और अगर इस स्टेटमेंट में ऐसा हो कि आरबीआई आरबीआई और यहाँ पे ये फ्री कन्वर्टेबिलिटी ना हो। ठीक है, चलो पहले तो हमने तीसरा स्टेटमेंट देख लिया कि इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता है, तो तीसरा हमने गलत कर दिया, तीसरा हमने हटा दिया यहाँ से, बी तो हमारा चला गया। अब बचा है हमारा 1 2 2 4 एंड 4। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास 4। ठीक है, जहां पे हमारा आंसर निकलेगा दैट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। इफ 4 इज करेक्ट देन ओनली वी कैन चेक 1, बिकॉज 2 इन इट्स एसेंस इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हर एक ऑप्शन में है, आपको फंस रहा है, तो दूसरा तो करेक्ट ही है। अब बचा आपके पास 1 एंड 4। इट्स अ सॉवरेन करेंसी इशूड बाय आरबीआई, इज अलाइंड विद द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। मैं बता रहा हूं, अगर ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये नहीं होता, अगर ये आरबीआई ने इशू नहीं किया होता, ठीक है, दिस इज अ सॉवरेन करेंसी छोड़ दो, इट इज इशूड बाय आरबीआई। अगर ये आरबीआई ने इशू नहीं किया होता तो क्वेश्चन बनाता ही क्यों? वो अपने 2 घंटे 4 घंटे क्वेश्चन बनाने में क्यों वेस्ट करता? एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता ही क्यों? वो आपको 2 नंबर यहाँ पे रखता ही क्यों अगर ये ठीक नहीं होता तो 1 इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एंड आंसर इज डी। ठीक है, दिस ई रूपी और डिजिटल रूपी वॉज कंटिन्यूसली डिस्कस्ड इन द हिंदू न्यूज़पेपर फ्रॉम 2022 2023 2024, और ये कंटिन्यूसली डिस्कस होता आ रहा था। और आई गेस ये जो सबसे ऊपर वाला एडिटोरियल है, दिस वाज फ्रॉम जैन 2024 और फरवरी 2024। ठीक है, ये हिंदू के बिजनेस पेज पे आया था, एंड फ्रॉम देयर दिस क्वेश्चन वाज इन्फ्लुएंस्ड। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दैट वाई 3 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट बी। ठीक है, इट्स नॉट समथिंग विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन विद बांग्लादेश। बांग्लादेश बेसिकली यहाँ पे क्राइसिस क्या हुई थी, और बांग्लादेश की जो ये क्राइसिस है, इस क्राइसिस से क्या क्या होगा और क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, बांग्लादेश की क्राइसिस, और इस पे इंडिया को कितना अब देखना पड़ेगा आगे क्या होगा। इफ यू सी दीज प्रोटेस्टर्स हु आर देयर इन द पैलेस ऑफ पीएम शेख हसीना, ठीक है, दे आर एंजॉइंग दैट they overthrew a government which they claimed was dictatorial. ठीक है, and which they claimed was in crisis, because they say that even 300 people died in the protests. The government didn't pay heed to their demands. प्रोटेस्ट पिछले 1.5 महीने से चल रहा था बांग्लादेश में। बांग्लादेश अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसके ये सारे रीजंस थे कि अनएम्प्लॉयमेंट था यूथ में, पॉवर्टी थी, और उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन राइज पे थी। ठीक है, टू विच गवर्नमेंट वाज नॉट टेकिंग दैट मच स्टेप्स एज पर द प्रोटेस्टर्स एंड देयर लीडर्स क्लेम्स। ठीक है, एंड नाउ व्हाट दे क्लेम्ड वाज कि शेख हसीना जी की जो गवर्नमेंट 15 साल से यहाँ पे पावर में थी, that government was not paying attention to people, but
It was an elitist government. It was just concentrated on its own power, nothing else. ठीक है, यहाँ पे अभी पीएम शेख हसीना जो है वो अपना प्लेस, अपना पैलेस छोड़ के इंडिया आ गई है। अब ये समझना यहाँ पे है कि टेक ओवर किसने किया है। टेक ओवर किया है वकारुज्जमा, जो वहां के आर्मी के चीफ है, उनने टेक ओवर किया। एंड ही कॉल्ड यस्टरडे ओनली, ही कॉल्ड द ऑपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म गवर्नमेंट। बट एक्चुअल में यहाँ पे बात ये हो रही है दैट जो पब्लिक है, दे आर डिमांडिंग समथिंग एल्स। दे आर डिमांडिंग people's rule. They are demanding their voices to be heard. They are demanding their issues to be solved. ठीक है, तो अवामी लीग यहाँ पे चली गई। अब यहाँ पे दूसरी पार्टी आ रही है, द जनता, एंड दिस आर्मी रूल। नाउ सी, द ब्रॉडर picture of this issue should be understood in such a manner that our India is currently facing these broader issues. When we talk about the Galwan crisis of China, if we talk about now the Bangladesh crisis, then the earlier Myanmar crisis, ठीक है, and the looming South China Sea crisis, ठीक है, on the eastern side. This is the eastern side of India. And if you see on the western side, Iran is being dragged into the war of Israel and Lebanon, ठीक है, इजराइल, पैलेस्टीन, लेबनान, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये चीज हो रही है दैट इजराइल एंड आर लाइक ally in the west, that is Iran, is being dragged into this war, ठीक है। तो इंडिया के वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड में ये चीजें हो रही है। प्लस इफ वी टॉक अबाउट इंडियन ओशियन एट लार्ज, है ना, तो यहाँ पे देयर इज कॉड, कॉड प्लस, ठीक है, यहाँ ऑकस है, ठीक है। यहाँ पे यूएसए इज ट्राइंग टू एम्पावर द countries who basically USA actually wants to disintegrate this region, and the Western hegemony, which actually is now focused on offshore balancing, is basically trying to do a power balancing game in this entire region. Now, understand the issue at broader level. In Bangladesh, in the past, it was seen that India backed the Hasina government, ठीक है, while as the West was backing the local people's resistance movement, the protests and all the other things. If you see Bangladesh's parameters as per the World Bank, ठीक है, जो यहाँ पे ये डेटा दिया हुआ है द हिंदू ने, it talks about the larger picture. It says the data which was given by World Bank and Human Development Reports witness and shows Bangladesh on an upper scale in terms of GDP per capita than India. Bangladesh on a better level when we talk about the Human Development Index. And इसी टाइम पे बांग्लादेश में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत कम हो रही है। इसके साथ साथ इफ यू टॉक अबाउट द सिविल लिबर्टीज एंड द लोकल पीपल्स व्यूज, ठीक है, व्हाट दे आर सेइंग इज दैट यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी ऑपोजिशन को मिली थी वो भी कम थी, वो भी कम हो रही थी पिछले 15 साल में। 15 साल से शेख हसीना जी की गवर्नमेंट थी। आर देयर फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया which is decreasing? Everything here asked to people is decreasing on the trend from last 15 years. Is there judiciary independent? No. Is there social freedom? Yes, to some extent, which has been maintained. ठीक है, तो these are the parameters in which you can understand कि बांग्लादेश की crisis actual में it's not just a 1 month protest by the students. It is a larger picture which we should understand that any state when there is coup, or any state when it comes to a crisis like this, that the actual government
the mainstream government of that country has to flee and vacate its chair within a month of protest or within a month of coup, like the Myanmar case, like the Bangladesh case. Basically, it's not actually because of the protest. It's because of the entire regime change game when we talk about the international relations. Okay? The regime change is something which we have in the past witnessed in Iran also, Iraq also, the Arabian Peninsula also, in African countries also, which are continuously going under the coup. ठीक है, बहुत सारी countries, around 8 to 10 countries in the Africa are under coup. ठीक है, they are under military rule. Similarly, this whole, if you see this whole distress and this whole, you can say, destability in the Africa, Asia, and all the Eurasian areas, this is something which we need to take care of and note down and understand that what are the developments in the larger picture. Okay? So besides this, you should also understand that yesterday only there were 3 to 4 attacks जो हमने देखा इसराइल में। इसराइल ने एक अटैक किया था इस पे गाजा पे, जहाँ पे 44 were killed. In the past 1 week, we have also seen the attacks on Hamas leaders. We have also seen attacks on फवाद शुक्र, जिसमें फवाद शुक्र को मारा गया, वो जो हिजबुल्लाह का चीफ था, इसको लेबनान में मारा गया। हानिया का डेथ हुआ। हानिया की डेथ कहाँ पे हुई? ईरान में हुई। हानिया वाज लोकेटेड इन दोहा, कतर में वो था। कतर से उसको इसराइल, यहाँ ईरान आना था। ईरान पहुंच के उनको सेरेमनी अटेंड करनी थी जो ईरानियन सुप्रीम लीडर थे उनकी। एंड उसी टाइम पे इसराइल डिड अ ऑपरेशन जिसके अंदर जो है हानिया को मार दिया गया। हानिया का हमने ये भी देखा दैट अप्रैल में उनके जो 3 बेटे थे उनको मारा गया। उससे पहले उनके उसी दिन उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन को भी मारा गया। नाउ द क्वेश्चन इज, फर्स्ट, how many chances are there that Iran will retaliate this? Okay, so in the past few weeks, we have witnessed this, that there is whole of a destability in the international arena. When we talk about Bangladesh, Iran, Israel, and all of this, this was just to make you understand that there is the whole dimension which is changing. And now when this whole dimension is changing, when this whole plethora of international relations is changing, when the multipolar world is changing, then there is a key aspect which we cannot neglect here. That is a World War III. Is it possible that World War III can be triggered in future, or is it possible that this can get triggered in the upcoming months or days? ठीक है, क्या ऐसा सही में बोलना सही है या ये गलत है बोलना? तो देखिए, अभी के लिए तो ये बोलना गलत होगा। हम यहाँ पे ज्योतिष नहीं बैठे हैं, ठीक है, कि हम बोल देंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने वाला है 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में। तो ऐसा नहीं है, बट येस, देयर आर इश्यूज, देयर आर चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू the world's security and the world's peace. Because if you see these many of the incidents from Africa to Asia to Eurasia to Israel, West Asia, हर एक region में, and not only this, UK also, ठीक है, Britain, we have seen UK में भी कल 13 years का सबसे बड़ा जो राइटिस्ट प्रोटेस्ट है वो हमने देखा। ठीक है, तो देयर इज डिस्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड, एंड व्हाट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर डूइंग, ठीक है, दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इज यूएन फेलिंग टू इट, और is there actually a problem with respect to the United Nations and the peacekeeping organizations of the world which need reforms? ठीक है, or how to control this destability which is looming towards the World War III? Done यहाँ तक।
अब यहाँ पे कुछ और चीजें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहली चीज, बांग्लादेश में ऐसा क्यों हुआ था, कि बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट क्यों हुए, बांग्लादेश में इतना डिस्टेबिलिटी क्यों हुआ। सबसे पहली चीज, बांग्लादेश में एक स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा था बहुत टाइम से। बांग्लादेश में एक पॉलिसी है, पॉलिसी लेके आए थे मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान वाज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, ठीक है। ठीक है, he brought in the policy of reservation and quota, ठीक है। एंड दिस कोटा सिस्टम वाज फॉर द पीपल ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। बेसिकली इनके लिए कोटा लाया गया दैट जो बांग्लादेश का मेरिट सिस्टम है, जो बांग्लादेश की पब्लिक सर्विसेज है, गवर्नमेंट सर्विसेज है, वहां की नौकरी में इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, फ्रीडम फाइटर्स को। देन दिस वाज एक्सपैंडेड टू देयर रिलेटिव्स एंड देयर नेक्स्ट जनरेशन। उनके जो बच्चे बच्चे हैं उनके लिए ये ये जो कोटा है ये एक्सपैंड किया गया था। रिसेंटली जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन्होंने सोचा दैट जो वहाँ का एक रेजोल्यूशन आया था दैट दिस कोटा सिस्टम शुड बी एंडेड, बट देयर वाज अ हाई कोर्ट जजमेंट ऑन दिस। हाई कोर्ट का आई गेस डिवीजन बेंच का जजमेंट था वो, जिसमें ये बोला गया था दैट दिस ऑर्डर शुड बी अबॉलिश्ड, ठीक है। दैट द गवर्नमेंट जॉब्स में जो ये कोटा है, this quota should be continued. But Supreme Court of the Bangladesh, it reinstated this quota system and bola that the Prime Minister's executive order which abolished this quota system should not be upheld. देन ये जो केस है ये अपीलेट डिवीजन पे चला गया था सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये ऐसा हुआ दैट जो हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको स्टे कर दिया गया। एंड नाउ because students were demanding a merit based quota system and they were demanding the measures against inflation and unemployment, so that is why there became this protest became more violent। और ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा वायलेंट हो गया कि 300 लोगों की जान चली गई इसमें। ये जो रिजर्वेशन है बेसिकली ये दी जा रही थी फ्रीडम फाइटर्स के कुछ रिलेटिव्स को या कुछ उनके जितने भी जनरेशन से आगे उनको। ये फ्रीडम फाइटर्स कितने ही हुए होंगे, तो बेसिकली जो क्लेम्स आ रही है वहां से, जो डेटा आ रहा है वहां से, इट दे वेर लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे वेर होल्डिंग अराउंड 70 to 80% ऑफ द जॉब्स, ठीक है। ऑन विच द यूथ ऑफ बांग्लादेश वॉज एंग्री और उनने प्रोटेस्ट किया। बट जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, शी सेड दैट दीज प्रोटेस्टर्स आर basically anti-state elements. They are not actual, they are basically the razakars. They were called as razakars. रजाकार एक्चुअल में उन लोगों को बोला जाता है बांग्लादेश में जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स होंगे, जो पाकिस्तान के सपोर्टर्स होंगे। तो शेख हसीना जी ने इनको बोला कि ये जितने भी लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये टेररिस्ट्स हैं, ये लोग असल में बांग्लादेश का भला नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट विच जिसकी वजह से उन लोगों का फिर ज्यादा रेज निकल के सामने आ गया और वो बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में डिस्टर्बिंग एलिमेंट था वो कमेंट करना। एंड नाउ दैट प्रोटेस्ट टुक अ शेप एंड वट एवर हैपेंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन ऑफ power distribution between the state government, between the government of UT of Delhi and the LG government, ठीक है। LG के ऑफिस में और दिल्ली गवर्नमेंट में जो पावर डिवीजन का खेल है, इस पे बहुत सारा डिस्प्यूट चलता रहता है। दिल्ली बनाया कैसे गया था और दिल्ली में LG गवर्नमेंट क्यों इतना ज्यादा इंटरफेयर करती है, और इफ यू सी द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट 2023 का बिल आया था जिसमें बोला गया था दैट द सर्विसेज विल बी अंडर द LG गवर्नमेंट, ठीक है, तो वो सारे वर्डिक्ट्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई जस्ट वांट यू टू डिस्कस अंडरस्टैंड व्हाट आर द निट्स एंड ग्रिट्स ऑफ आर्टिकल 239 AA जो इंसर्ट किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। सो दिस आर्टिकल 239 AA was inserted into the Constitution of India with 69th Constitutional Amendment Act of 1991, ठीक है।
ये इसलिए लाया गया था टू गिव न्यू दिल्ली द स्पेशल स्टेटस, and it was introduced on the recommendations of S. Balakrishna committee, and it was set to look into the statehood demands of Delhi, कि क्या दिल्ली को स्टेटहुड डिमांड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसलिए ये कमेटी बनाई गई थी। देन द एनसीटी ऑफ दिल्ली, जो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस आ गई, और जो आर्टिकल 239A है, ये क्या बोलता है? आर्टिकल 239A सेज दैट द एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, शुड हैव एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एंड अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। Subject to the provisions of the Constitution, the Legislative Assembly will have a chairman, this CM, with Council of Ministers to aid and advise the LG. ठीक है, LG is supposed to act either on the aid and advice of Council of Ministers, or he is bound to implement the decisions which are taken by, अगर उसको लगता है कि ये एड एंड एडवाइस जो सीएम और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे रहे हैं वो मुझे नहीं करना चाहिए, देन ही हैज टू आस्क प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट व्हाट शुड आई डू, देन व्हाटएवर प्रेसिडेंट सेज ही हैज टू इंप्लीमेंट दैट डिसीजन। ये आर्टिकल 239 डबल ए साफ बोलता है। आर्टिकल 239 डबल ए एम्पावर्स एलजी टू रेफर अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन सच मैटर्स टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। देयरफॉर जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, इट हैज अ ड्यूअल कंट्रोल। ड्यूअल कंट्रोल कैसे है? एक एडमिनिस्ट्रेटर का कंट्रोल है, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली का कंट्रोल है, ठीक है। सो आर्टिकल 239 टू 241 डील्स विद द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। यहां तक क्लियर है? और इसी में दिल्ली एंड पुडुचेरी दोनों आते हैं। दिल्ली एंड पुडुचेरी से रिलेटेड and Jammu and Kashmir also now after 2019 there are some special provisions with respect to these three union territories which have legislative assembly in place। यहां तक क्लियर हो गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में क्या हो रहा है और 239A क्या क्या बोल रहा है, ठीक है, क्लियर यहां तक। इन द रीसेंट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट 239AA established a legislative assembly for NCT of Delhi, but the members of legislative assembly are elected by Delhi electorate, ठीक है। If this government is elected by the Delhi people and the electorate of Delhi, then they should have the power to control the officers, they should have the power to control the services, then there should be a chain of accountability, ठीक है। एंड इफ यू सी कि दिल्ली गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है, एडमिनिस्ट्रेटर भी कंट्रोल कर रहा है उन लोगों को, तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम की बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें व्हेन इट कम्स टू दिस द चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द ऑफिसर्स। इसी के साथ साथ एक और मैटर है, एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट साइड कि जो दिल्ली की एमसीडी है, ठीक है, यहां पे एलजी के पास पावर्स है, ठीक है, एलजी हैज ऑल द राइट्स टू द एलजी bypassing the top court said that LG has powers to appoint the alderman in the municipal corporation of Delhi, कि वो यहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट कर सकता है, कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, बट दिल्ली गवर्नमेंट इज ऑपोजिंग इट, कि अगर एमसीडी में भी अब जो एलजी है उसका हाथ चला गया, then we won't be able to function democratically, because the people who are elected democratically, the government which is elected democratically is not controlling its MCD only, then how will it control the other matters, ठीक है। तो यहाँ तक ये समझना है what is the update on this, rest we do not go tend to go in detail into that the politics which is going over there over the LG and basically AAP, actual में वो it is basically the BJP versus AAP,
So let's leave that aside and let's just focus over the constitution part only. This editorial I wanted to discuss, this is basically not that significant when it comes to the actual things which are going in the houses, but यहाँ पे अभी तक ऐसा पार्लियामेंट में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट स्टेट गवर्नमेंट में देर इज एप्रहेंशन दैट यहाँ पे ऐसा हो सकता है दैट वेस्ट बंगाल को डिवाइड किया जाए दो हिस्सों में। ठीक है, ये चीज यहाँ पे एप्रहेंशन के तौर पे आ रही है। ये चीज जस्ट एक ऐसी चीज है जो बस वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मान रही है, एंड उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया अभी दैट वी विल अपोज दिस डिसीजन इफ सेंटर टेक सो। ठीक है, कि वेस्ट बंगाल को डिवाइड करने वाला डिसीजन जो होगा वो हम टोटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था। Shama Prasad Mukherjee actually wanted the Jansangh, that is the people of West Bengal, to be the representatives of West Bengal, and he did not opt for West Bengal to join Eastern Pakistan. Rather, he took the side of India and he joined India only, the Indian Dominion. ठीक है, बट यहाँ पे हमें समझना है आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, बस ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए आर्टिकल 1, 2, 3, 4 का, क्योंकि यहाँ से हर साल प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता ही आता है। रेस्ट वी विल सी, अगर ये चीज होती है देन वी विल सी कि ऐसा होने पे क्या किया जा सकता है और क्यों होता है ऐसा, कौन पास करेगा रेजोल्यूशन, पहले बिल कहाँ जाएगी, उसके बाद बिल कहाँ जाएगी, किन किन मैटर्स में ऐसा हो सकता है। ठीक, अंडरस्टैंड। सबसे पहले आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का नाम दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, this is written in article 1. Article 2 talks about admission or establishment of new states, those states which are not part of India yet. जो स्टेट्स अभी तक इंडिया का पार्ट नहीं बने हैं, जो टेरिटरी इंडिया का पार्ट नहीं बनी है, उनको एडमिट करना इंडिया में और उनको एस्टैब्लिश करना एज अ स्टेट इन इंडिया, दैट इज द मैटर ऑफ आर्टिकल 2. But when we talk about formation of new states and alteration of areas under article 3, this is where it gets complex. ठीक है, यहां पे होगा क्या, यहां पे रीऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, जैसे आपने जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन देखा, जैसे आपने रीऑर्गेनाइजेशन सिक्किम का देखा, आंध्र प्रदेश का देखा अभी, ठीक है, रिसेंटली हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिस महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादरा एंड नगर हवेली, उन सबको भी एक साथ कर दिया गया। दिस होल टेक्स प्लेस अंडर आर्टिकल 3। बट क्या इस रीऑर्गेनाइजेशन को, क्या एक स्टेट को डिवाइड करने के टाइम पे, ठीक है, एक स्टेट को डिवाइड करना है दो हिस्सों में, एक स्टेट को यूटी बनाना है, एक स्टेट को अलग अलग हिस्से करने हैं, उसका एक पार्ट दूसरे स्टेट के साथ मर्ज करना है, क्या इन सब चीजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए? नहीं चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए। व्हाई? बिकॉज आर्टिकल 4 इटसेल्फ सेज कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी लॉ बनाया जाएगा दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ constitutional amendment. Clause under Article 2 and 3 to provide for the amendment for the first and fourth schedule are supplemental, incidental or the consequential matters will not be considered as amendment. They will not be considered as law. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? Now understand Article 3. Article 3 of Indian Constitution says, क्या बोलता है आर्टिकल 3? कि पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट के पास ये पावर्स है कि वो एक लॉ बनाएगा और उस लॉ के अंदर पार्लियामेंट क्या करेगा, इट विल फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम a state or by uniting two or more states or the parts of states or by uniting any territory to a part of the state. ठीक है, ये एक नया स्टेट बनाएगा। कैसे बनाएगा? एक स्टेट के दो हिस्से कर देगा, ठीक है, या इन दो हिस्सों को आपस में जोड़ के एक और स्टेट बना देगा। ठीक है, या फिर क्या करेगा, इट विल यूनाइट अ पार्ट ऑफ अ स्टेट एंड अ पार्ट ऑफ अ यूनियन टेरिटरी टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। इट कैन इंक्रीज the area of a state, it can decrease the area of a state, it can alter the boundaries of a state, it can alter the name of a state. अब ये सब चीजें करने के लिए पार्लियामेंट को क्या करना पड़ता है?
पार्लियामेंट, इट इज प्रोवाइडेड दैट पार्लियामेंट बाय लॉ कैन डू दिस। तो पार्लियामेंट को एक लॉ पास करना है। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये जो लॉ आएगा, ये जो बिल आएगी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, दिस हैज टू बी पास्ड, दिस हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द हाउस विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर परमिशन होना चाहिए, बट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परमिशन देने से पहले क्या करेगा, ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाएगा और उनको बोलेगा दैट भाई साहब, हम आपके स्टेट को डिवाइड करने वाले हैं, अलग अलग करने वाले हैं, इसका नाम बदलने वाले हैं, या इसका एक पार्ट किसी और स्टेट के साथ मर्ज करने वाले हैं। तो आपका क्या कहना है इस चीज पे? स्टेट लेजिस्लेचर एंड प्रेसिडेंट विल ऑल्सो मेंशन दिस थिंग कि आप इस चीज का जवाब कितने दिन में दोगे, एंड विद द वैलिडिटी ऑफ दैट मच ऑफ डेज स्टेट लेजिस्लेचर विल रिप्लाई बैक टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, once they reply back to the president, then president has its own discretion कि वो ये मैटर आगे प्रोसीड कराएगा या नहीं, और then parliament will bring in a law to the legislature। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगर यहां पे स्टेट लेजिस्लेचर अलाउ नहीं करता है या स्टेट लेजिस्लेचर नहीं मानता है, इन सच केस बांग्ला दिस वेस्ट बंगाल is also saying that we will protest over this and we will not accept such resolution to be passed, then what is the way forward? The way forward is that this thing cannot be considered, this thing can be ignored also, and parliament can have a go ahead with the permission of president even if the state legislature is not agreeing on this। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? डन। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल जो हमने देखा दैट ये जो दो डेथ्स हो गई, नॉट डेथ्स हो गई बट जो इनको मारा गया, हनीय और फवाद शकूर को, यहाँ पे ये एडिटोरियल डिस्कस ये कर रहा है दैट कि ईरान को यहाँ पे बहुत ही बड़ा सेटबैक हुआ है। अब ईरान का नुकसान हुआ कि ईरान यहाँ पे मतलब इस सिचुएशन में था कि पिछली बार भी ड्रोन अटैक कर दिया, मिसाइल छोड़ दिए इसराइल के ऊपर। ठीक है, अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अभी ईरान की सिचुएशन क्या है कि एक साइड से हिजबुल्लाह पे अटैक कर दिया और उनका चीफ मार दिया गया, दूसरे साइड से ईरान के अंदर घुस के वहां पे उनकी जो सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस है उसको हटा के, लाइक उसको उसकी नाक के नीचे से जाके हनीये को मार दिया ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। ठीक है, एंड देन दिस IRGC विच इज द ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने स्टेटमेंट दिया दैट हम लोग जो है ये अनाउंस करते हैं कि हनिया की जो डेथ है वो हो गई है, हनिया को जो है वो उसको मार दिया गया है। ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। द प्रॉब्लम हियर इज कि ईरान इज अबाउट टू टेक रिवेंज, क्योंकि उनके पास अभी राइट टू स्ट्राइक बैक है, ऑलरेडी ईरान के ऊपर हमले हुए हैं, मतलब ये सब चीजें हुई है। नाउ द कंडीशन इज एक्चुअली इजराइल, बिकॉज हनीये वॉज अ पर्सन जो यहाँ पे डिप्लोमेटिक पर्सन था। ठीक है, हु वॉज ऑलवेज ऑन दिस साइड की सीज फायर कर लो। ठीक है, वो सीज फायर चाहता था, बट इसराइल ने उसी को मार दिया, और उसको मार दिया तो इज इसराइल एक्चुअली वांटिंग पीस और नॉट? ठीक है, एंड उसको तब मारा, अगर वो कतर में होता तब मार देते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट उसको ईरान के अंदर मार दिया, जिसकी वजह से ईरान की सॉवरेंटी भी अब जो है क्लेम में आ गई है। So the point here is regional security is again on its toll. Now let's see what happens. The news which is coming from last 12 hours say कि Iran will retaliate back. There is possibility that Iran could attack Israel in next 24 to 48 hours. Iran and Hezbollah is attack may attack on Israel which is imminent. किसने बोला है? ब्लिंकन ने बोला है। ठीक है, कि इन दोनों का अटैक हो ही सकता है, ये हम अब इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑलरेडी ईरान को इतना बड़ा लॉस हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, हमने ये भी देख लिया ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी कैसे काम करती है। नाउ फॉर दिस एडिटोरियल आई विल टेक यू टू द न्यूज़पेपर। ठीक है, समझना ये है कि ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट क्यों है और इस एडिटोरियल की इंपॉर्टेंस को मैं इतना ज्यादा क्यों बता रहा हूं, बिकॉज दिस एडिटोरियल एक्चुअली इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है,
This editorial talks about the rise of domestic violence in India and rise of institutional violence. ठीक है, एडिटोरियल यहाँ पे बात किस चीज के बारे में कर रहा है? दैट इन इंडिया अराउंड 90 रेप्स आर रिपोर्टेड एवरी डे. Very few are there among the 200 2800 कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर इलेक्शंस. इनमें से किसी ने भी ऐसा अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कि हम वुमेन सिक्योरिटी को सबसे प्रायोरिटी देंगे. जबकि बैक देन जब ऐसा हुआ था, जब निर्भया कांड हुआ था, उस टाइम पे एवरीवन वाज क्लेमिंग वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी. ठीक है, बट इफ यू सी टिल दिस डेट देयर आर 90 रेप्स एवरी डे व्हिच आर रिपोर्टेड टू दी ऑफिसर्स इन इंडिया. ठीक है, अब यहाँ पे डाइकोटमी ये बताई जा रही है, sorry, the dichotomy here is real, that 50% of the women who face domestic violence are, out of them, 2 out of the 3 are Dalit women who face sexual violence in their lifetimes. ठीक है, तो अंडरस्टैंड दैट फ्रॉम द डाउन ट्रोडन ये जो डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल वायलेंस है, ये कितना ज्यादा डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, ये इशू है. तो ये जो डेटा यहाँ पे दिखा गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट, इस एडिटोरियल में एक और चीज डिस्कस की गई है, दैट इंस्टीट्यूशनल वायलेंस ऑफ द सर्वाइवर्स. कि इवन दो हमारे पास ऐसा होता है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस हो गया, रेप हो गया, बट स्टिल the police and the institution and the criminal justice system is not that much active, is not that much sensitive to the case, due to which we, the victims itself, when they seek justice, okay, they itself, when they are seeking justice, it in terms leads them to injustice. नहीं समझ में आया? कि जो लोग, फॉर एग्जाम्पल कोई रेप का विक्टिम है, and that victim of rape is trying to report his case and fight against the convicts, the victim itself is held in such a system कि उसको चक्कर ही लगाने पड़ते हैं पुलिस स्टेशन के, उसको जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन बार बार, उसको जाना पड़ता है कोर्ट बार बार, और उसका केस इतना लंबा खिंच जाता है कि itself, because of the 40 million court cases which are pending in the judiciary, particularly in the higher judiciary, this thing gets aggravated, कि वो जस्टिस लेने के चक्कर में उनको इनजस्टिस हो जाती है. बिकॉज इट्स राइटली सेड ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ठीक है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एंड वंस दिस थिंग हैपन्स तो नो वन कैन सेव इट. ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? ये दो तीन चीजें थी यहां पे जो हमें इस एडिटोरियल की डिस्कस करनी थी. नेक्स्ट, द एडिटोरियल ऑल्सो सजेस्ट अस कि इंडिया में वी हैव स्ट्रॉन्ग लॉज बट द इम्प्लीमेंटेशन इज वीक, because at the national level the reimagination and improvisation of justice institutions is necessary. ठीक है, और यहाँ पे एक केस स्टडी दी गई है, वननगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी केस स्टडी दी गई है, बट मैंने वो चीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है. ठीक है, छोटी सी केस स्टडी है, उतना ज्यादा नहीं है, बिकॉज हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट द पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, द डेटा इज इंपॉर्टेंट. The gender sensitive training and monitoring and evaluation measures to ensure the staff have a trauma informed approach, ये important है हमारे लिए. एक, कि जो हमारे पुलिस के लोग हैं, जो हमारे जुडिशरी के लोग हैं, जो हमारे वकील होते हैं, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उन सब लोगों को जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मेजर्स उन पे बिठाए जाने चाहिए. पहले उनको जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग दो, और उसके बाद वो जो काम कर रहे हैं उस पे मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन मेजर्स होने चाहिए. प्लस इसके साथ साथ जो ये पूरा स्टाफ है, पुलिस के हवलदार से लेके जज तक, उन सबको ये अंदर से सेंसिटिविटी होनी चाहिए, उन सब के पास ये सेंसिबिलिटी होनी चाहिए, दैट हाउ टू डील विथ दी ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच. ठीक है, कि जो लोग ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनके लिए हमारे पास क्या अप्रोच होना चाहिए. क्लियर? यहां तक खत्म हो गई हमारी चीजें. नेक्स्ट जो हम यहाँ पे एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज
I guess that is on this page. The doorstep delivery of alcohol in India. What do you think? Is it possible to consider the doorstep delivery of alcohol in India? क्या हम ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ अल्कोहल करा सकते हैं? ऐसा हो सकता है, ठीक है। और अगर कराएं तो इसके इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स क्या है, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है और कैसे किया जा सकता है ये। Recently, the governments of Delhi, Karnataka, Haryana, Punjab, Tamil Nadu, Goa, and Kerala, they are planning that we will allow Swiggy, Big Basket, and Zomato to uh, do this doorstep delivery कि लोग ऑर्डर कर दे स्विगी पे एंड उनके घर पे अल्कोहल आ जाए। इफ यू सी देयर इज अ स्टडी विच शोज कि इंडिया में अल्कोहल का कंजप्शन 1.6 लीटर से बढ़ के 5.5 लीटर्स हो गया है पर कैपिटा कंजप्शन, ठीक है। और इसमें वो लोग भी आते हैं जो नहीं पीते हैं, ठीक है। ये पर कैपिटा कंजप्शन है, अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट, देयर इज अ $52 बिलियन रेवेन्यू which is generated with the alcohol market, and India is sixth largest in terms of alcohol market worldwide. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं और हमें ऐसे ही अपने आंसर में लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें समझनी है, दैट मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट सर्वे इन 2019 said that there were around 16 crore alcohol users in India ranged from the age of 10 to 75। अब आप समझो इस चीज को कि सेफ लिमिट कितनी हो सकती है अल्कोहल की, ठीक है। एक इंसान कितना ऑर्डर कर सकता है अल्कोहल ऑनलाइन, और 3 लाख डेथ्स होती है हमारे पास हर साल ड्यू टू अल्कोहल। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम लोगों की जान पे खेल के इस चीज को अलाउ कर दे? एंड व्हेन इट इज आर डीपीएसपी to ban the intoxicants and to regulate the intoxicants and to lower the consumption of intoxicants in our state, is this actually a case? यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो एथिकल डायमेंशन है, दूसरा यहाँ पे लेजिस्लेटिव डिलेमा है, ठीक है। कि जो हमारी गवर्नमेंट्स है वो इस पे लॉ बनाए कि हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स यहाँ पे इतने ज्यादा है, $52 बिलियन की ये इंडस्ट्री है, क्या ये किया जाए, या फिर डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करके अल्कोहल को बैन कर दिया जाए, ठीक है। या क्या फिर यहाँ पे बिहार में जो अल्कोहल का बैन लगा हुआ है या जो बाकी स्टेट्स में, कुछ कुछ स्टेट्स में लगा हुआ है, सब में नहीं है, बिहार में पर्टिकुलरली अल्कोहल बैन लगा हुआ है, तो क्या वो बैन एक्चुअल में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर हम अल्कोहल को इतना ज्यादा डीकमीशन कर दे या फ्री छोड़ दे कि लोगों की मर्जी है, जितना पी सकते हैं उतना पी ले, ठीक है, और उनके डोर स्टेप पे इसको अलाउ करा दे। सो व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ अलाउिंग इट एट डोर स्टेप डिलीवरी? इट इज सेड कि अल्कोहल पीने के बाद चाहे लोग पैदल चल रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, 6 to 48% ऑफ द फेटल रोड ट्रैफिक फैटेलिटीज आर ड्यू टू अल्कोहल यूज। तो इसलिए अच्छा ये है कि घर पे बैठ के ही दारू पी जाए, मतलब अल्कोहल पी जाए, बाहर ना निकला जाए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप ऐसा करते हो तो जो ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम है उसमें सेल्स को ट्रैक करना इजी हो जाएगा, उसकी वजह से रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्विगी के जो ड्राइवर होंगे या जोमेटो या बिग बास्केट के जो वेंडर्स होंगे उनको थोड़ा सा और सेल मिल जाएगा, तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। और इसकी वजह से होगा क्या, ये जो हमारा ये टोटल रेवेन्यू है ये फॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। इस पे टैक्स लगाना, एक्साइज लगाना इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, रोड एक्सीडेंट्स जो अल्कोहल की वजह से होते हैं वो नहीं होंगे। जो वुमेन कंज्यूमर्स है जिनको बाहर जाके खरीद के लाना पड़ता है फ्रॉम द आउटलेट, वो लोग अगर घर पे ही बैठे तो उनके लिए सेफ रहेगा ये चीज, और उनके साथ एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। बट व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट दिस थिंग आर कि इसकी वजह से हमारा अल्कोहल का यूज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अल्कोहल की सेल्स बढ़ेंगी। बट इज इट गुड टू इंक्रीज दिस सेल्स व्हेन देयर आर नो कॉन्क्रीट एविडेंसेस कि अल्कोहल घर पे पीने से या सोशलाइजिंग बिहेवियर ऐसा होगा कि डोर स्टेप डिलीवरी की वजह से सोशलाइज हो जाएगा इंसान आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है। या ऐसा कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास कि विद द डोर स्टेप डिलीवरी पीपल विल नॉट ड्रंक एंड ड्राइव,
ठीक है, ऐसा भी कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो वाई आर वी अज्यूमिंग सच थिंग्स एंड अलाउिंग अ कार्सिनोजेनिक ड्रग टू बी डिलीवर्ड एट होम्स एंड इट्स इन टर्न डिलीवरिंग द कैंसर टू द डोर स्टेप्स। ठीक है, in such a time when India is dealing with NCD, non-communicable diseases, बहुत ही ज़्यादा high level पे, तो then how come do you understand that this will help in any matter? Next, the male alcohol misuse may increase due to all of this. Alcohol consumption अगर बढ़ गया तो male alcohol increase बढ़ेगा, inter partner violence बढ़ेगा, ये भी हो सकता है, इसके भी chances है बहुत सारे। ठीक है, इसके साथ साथ there are some other arguments that there are 3 lakh crore uh, the cost of India's alcohol consumption is expected to be around 3 lakh crores between 2011 to 2050। ठीक है, 2050 तक 3 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली है, या इसका कंजम्पशन इतना बढ़ने वाला है। नाउ इन सच एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव डू वी एक्चुअली नीड टू रेगुलेट इट और नॉट? ठीक है, नेक्स्ट, what can the government do? What are our suggestions to the government? What the author is suggesting to the government? First, except for some national policies, including the drunk driving laws and health warning labels, alcohol use policies have been delegated to the states, resulting in wide variation in the policy framing and implementation. चूंकि हर स्टेट अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहा है, कुछ स्टेट्स ने बैन कर दिया और वहां पे इलीगल यूज हो रहा है। ठीक है, जिन स्टेट्स ने बैन नहीं किया तो वहां पे जो है एक्साइज के अंदर वो आते हैं, जीएसटी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट, द क्रॉस सेक्टोरल पब्लिक हेल्थ अप्रोचेस, दे इंक्लूड restricting the availability and marketing of alcohol, higher taxes, enforcement of drunk driving laws, and higher investments in cost benefit or cost beneficial psychosocial treatments of alcohol use disorders। ये सब चीजें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सबसे पहले, we should restrict the availability of alcohol, we should decrease the marketing of alcohol, we should increase the taxes over alcohol, we should also enforce and implement the drunk driving laws severely, we should also see कि एक awareness होना चाहिए, and there should be increased investment in making people aware of this thing कि साइकोसोशल ट्रीटमेंट आफ्टर अल्कोहल यूज डिसऑर्डर कैसे किया जाए, कि लोगों को ठीक कैसे किया जाए व्हेन दे हैव अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, कि वो उनसे नहीं रहा जाता है विदाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा ये एडिटोरियल। नेक्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट दी केमिकल्स, लैब केमिकल्स। ठीक है, तो लैब केमिकल्स में अभी जो हमारा बजट आया था 2024-2025 के लिए, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस पे 150% का हाइक किया था ऑन इट्स कस्टम ड्यूटी। एंड इट वाज कि जो साइंटिस्ट्स ऑर्डर दे रहे थे ना बाहर इंपोर्ट करने के लिए, जो उनके लैब केमिकल्स थे, वो जो लैब केमिकल्स इंपोर्ट करते थे, उन लैब केमिकल्स को इंपोर्ट करते टाइम व्हाट दे वर डूइंग इज बेसिकली दे वेर इंपोर्टिंग दीज लैब केमिकल्स। और जब वो लैब केमिकल्स इंपोर्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे दे सॉ कि जो चीज उनको 1 लाख रुपए की मिल रही थी, ठीक है, जो चीज उनको 1 लाख रुपए की मिल रही थी वही उनको अब 2.5 लाख रुपए की मिलने लग गई, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन दी कस्टम ड्यूटी जो 150% की बढ़ गई थी। पहले ये कस्टम ड्यूटी 10% की थी, बट बजट ने इसको 150% कर दिया। ये ऐसा क्यों किया गया, लेट्स कम टू इट लेटर, बट यस आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, देयर इज की एलिमेंट अबाउट दिस डेटा कि हमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन समझना होगा बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस एडिटोरियल। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे, ये 2020 तक का डेटा है, बट इट्स रेलिवेंट डेटा, एनसीआरबी का डेटा है। इसको आप लिख लेना एक बार अपने नोट्स में, वन थिंग। सेकेंड थिंग, डोर स्टेप डिलीवरी हमने देख लिया, इसको भी डिस्कस कर लिया। नाउ कमिंग बैक टू लैब केमिकल्स, दीज लैब केमिकल्स, इस पे जो एक्साइज ये कस्टम ड्यूटी लग रही थी वो 10% से बढ़ा के 150% कर दी गई। क्यों करी गई थी ऐसा? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक की एलिमेंट है इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल दो टाइप्स का आता है। एक इथेनॉल होता है जो सोर्स किया जाता है ग्रेन से, जो बनाया जाता है रॉटन ग्रेन से, मतलब धान हो गया, राइस हो गया, तो वहां से बन जाता है वो। ठीक है, आफ्टर फर्मेंटेशन एंड ऑल।
इसको बोला जाता है एंड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहल, फिर इसको अल्कोहल में यूज किया जाता है और इसको बोला जाता है डीनेचर्ड इथेनॉल। ठीक है, this denatured ethanol, which is another type of ethanol, is formed and then mixed with additives and which is unfit for consumption। ये जो डीनेचर्ड इथेनॉल है, यही इथेनॉल यूज किया जाता है और इसी इथेनॉल को मैन्युफैक्चर और इंपोर्ट किया जाता है किन के द्वारा? जो लोग ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं उनको ये जरूरत होता है, कौन सा? डीनेचर्ड इथेनॉल। बट हो ये रहा था कि इथेनॉल जो यूजुअली लेबोरेटरी केमिकल्स में बनाया जाता है या लेबोरेटरी केमिकल्स में यूज होता है, लैब्स में जो यूज होता है पर्टिकुलरली, उस इथेनॉल के बदले जो नॉर्मल इथेनॉल, जो ग्रेन सोर्स है, जो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उस इथेनॉल को इंपोर्ट करके लाया जा रहा था। अब उस इथेनॉल पे एक्चुअल में कस्टम ड्यूटी लगानी थी 150% की, बट लग गई सब पे, लग गई हर केमिकल पे। नाउ द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज टेकन बैक दैट प्रपोजल और उन्होंने उस चीज को हटा दिया है कि अब ये लोग 150% का नहीं लगाएंगे इस पे, बट दे विल चेक एंड रेगुलेट दिस डीनेचर्ड इथेनॉल। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। इसकी वजह से हुआ क्या था कि बहुत ही ज्यादा राइज हो गया था और जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो बाहर आ गई थी और उन्होंने बोला दैट वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। और प्रोटेस्ट करते हुए ही ये चीज हो गई थी दैट नाउ दिस डिसीजन वाज टेकन बैक। अंडरस्टैंड दैट अदर डायमेंशंस फर्स्ट। नेक्स्ट इज कि जो ये साइंटिफिक कम्युनिटी है, व्हाट अदर केमिकल्स डू दे यूज व्हेन इट कम्स टू द लैब एक्सपेरिमेंट्स? दे यूज सम ऑक्सीडाइजर्स, सम एसिड्स, compressed gases to conduct their experiments। इसके साथ साथ उनके पास फनल्स, ब्रेकर्स, टेस्ट ट्यूब्स, बर्नर्स, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर इम्पोर्टेड, ठीक है, विच आर ऑलरेडी फेयरली एक्सपेंसिव, बट once this added duty was imposed, so they became more what they became more uh, expensive। Next thing in this case is what is this custom duty and what custom department actually regulates in the lab chemicals? They regulate all the organic and inorganic chemicals। चाहे कोई भी केमिकल किसी भी साइंटिस्ट को इंपोर्ट करना है, उसकी पैकेजिंग 500 ग्राम या 500 मिलीलीटर से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके वो इंपोर्ट होगा। देन ओनली दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज लैब केमिकल। जब वो बल्क क्वांटिटी में लेके आएंगे तब वो लैब केमिकल कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, डन। दीज आर सम ऑफ द लैब केमिकल्स जो ये लोग यूज करते हैं, लाइक रीएजेंट्स, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, सम अदर these chemicals and all. I don't know all of these because there are no names written on that. Okay, now coming to this editorial, again we will go to the next newspaper only because this editorial is very much important for us. Coming to sundials to atomic clocks, हम लोग ह्यूमैनिटी सनडाइल से लेके एटॉमिक क्लॉक तक कैसे पहुंचे और कितने सारे डेवलपमेंट्स हुए, ये सब चीज़ों पे हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं। एक क्लॉक क्या होता है? क्लॉक एक सिंपल चीज़ है जो आपको अमाउंट ऑफ टाइम मेजर करके देता है। जो आज के क्लॉक्स या आपने अपने दीवार पे वॉल क्लॉक देखा होगा, आपने अपने हाथ में एक रिस्ट वॉच पहनी होगी, दे ऑल यूज दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये एक क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, नॉर्मली मिल जाता है माइनिंग के टाइम पे, ये मिल जाता है। ये क्वार्ट्ज का क्रिस्टल छोटा सा, बिल्कुल छोटा क्रिस्टल आपकी इसमें वॉच में होता है फिक्स्ड। व्हाट दैट क्रिस्टल डज, एक पीजो इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू दिस क्रिस्टल, जिसकी वजह से ये क्रिस्टल ऑसिलेट करता है। ठीक है, इसके ऑसिलेशन को देन इट इज measured, that oscillation helps us to change the oscillation into the periodic oscillations। then उसके अंदर, इसी क्लॉक के अंदर there are some other instruments like resonator, the oscillator। what they do is they actually work on the dials,
दे एक्चुअली वर्क ऑन द गियर्स, और उसके बाद वो गियर्स रोटेट करते हैं. बट बिफोर वी गो डीप इनटू दैट, अंडरस्टैंड व्हाट द एडिटोरियल एक्चुअली टॉक्स अबाउट. एडिटोरियल सेज कि क्वार्ट्ज क्रिस्टल हमने अब जाके यूज किया है, बट इससे पहले हम लोग सनडाइल्स यूज करते थे. सनडाइल्स में क्या होता था, वहां पे शैडो होती थी, और शैडो के जहां जहां पे शैडो पड़ रही थी, बिकॉज सन इज चेंजिंग इट्स पोजिशन इन दी स्काई, सिमिलरली यहाँ पे जो शैडो है वो भी चेंज करेगी पोजिशन, और वहां से हमें टाइम का अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना जो ये शैडो है कितनी चेंज हो गई. क्लियर यहां तक? प्लस इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो वाटर क्लॉक्स. वाटर क्लॉक्स में क्या होता है, वाटर क्लॉक में दे वुड स्लोली फिल अ वेसल विद इट्स लेवल एट डिफरेंट टाइम्स इंडिकेटिंग हाउ मच टाइम हैज पास्ड. ठीक है, एक वाटर क्लॉक होगा जिसमें पानी भरता चला जाएगा, और उसमें लेवल का मेजरमेंट होगा कि कितना पानी भर गया और कितना पानी जा रहा है ऊपर और कितना टाइम पास हो गया. ठीक है, क्लियर. एक वाटर क्लॉक, वैसे ही आपने सैंड क्लॉक भी देखा होगा, वो उसमें सैंड होती है, उसको पलट देते हैं हम, सैंड ऊपर से नीचे आती है, 1 मिनट चला जाता है, दैट इज समथिंग विच वी यूज. ठीक है, हो गया ये सब, कहानी समझ में आ गई. नेक्स्ट इज कि मैकेनिकल क्लॉक्स काम कैसे करते हैं, हाउ डू दे वर्क. ठीक है, जैसे वाटर क्लॉक या वाटर टैंक यूज करती है, वैसे ही गियर एंड व्हील्स, पुली, ये सब चीजें यूज होती है वाटर क्लॉक में. बट जो मैकेनिकल क्लॉक है वो कैसे काम करता है, उसके काम करने के लिए हमने एक गियर बनाया. ये गियर बना 13th सेंचुरी में. ठीक है, जिसको बोला गया वर्ज एस्केपमेंट. ये 13th सेंचुरी में ये गियर बनाया गया. अब इस गियर की वजह से क्या होगा, ये आपने देखा भी होगा, ऐसे एक सर्कल होगा जिसपे ऐसे यू विल सी एक सी सॉ जैसा पैटर्न बनाया होगा, सॉ जैसा पैटर्न, नॉट सी सॉ, सॉ जैसा पैटर्न बनाया होगा. एंड ये गियर जो है चलता जाएगा. ठीक है, वंस इट कंप्लीट्स वन राउंड, इट हिट्स अनदर गियर एंड दैट गियर कंप्लीट्स इट्स वन यूनिट ऑफ मूवमेंट. ठीक है, ये तो आपने समझ लिया होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर आप अपना क्लॉक देखे होगे कभी, तो आपको ये दिख जाएगा. आप ट्रांसपेरेंट क्लॉक्स जितने देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ये गियर कैसे काम करता है. नेक्स्ट, दिस गियर मूव्स विद द एस्केप व्हील. ठीक है, एंड अ बैलेंस व्हील. तो तीन चीजें होती है इसमें, एक ये व्हील होता है, दूसरा व्हील यहाँ पे कनेक्टेड होता है. ठीक है, दिस व्हील हिट्स अनदर व्हील जिसको हम एस्केप व्हील बोलते हैं, एंड देन इट हिट्स अनदर व्हील जिसको बैलेंसिंग व्हील बोलते हैं. समझ गए हम लोग ये चीज, यहाँ पे व्हील्स यूज होते हैं. देन वी ऑल्सो सी, ये जो ये बैलेंसिंग व्हील होता है ये एक ऑसिलेशन क्रिएट करता है, उस ऑसिलेशन की वजह से ये मूव करता है. और 15th एंड 18th सेंचुरी में बाकी सारे, फिर हमारे पास स्प्रिंग व्हील्स आ गए, स्प्रिंग यूज हो गया इस वॉच के अंदर, और उस स्प्रिंग की वजह से फिर ये मूवमेंट्स होने लग गए. बट इन द मिड 17th सेंचुरी, 1600s में ऐसा हुआ, एक इन्वेंटर था, डच इन्वेंटर जिसका नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस. उसने इन्वेंट किया एक पेंडुलम क्लॉक. उसने कन्वर्ट किया इस चीज को कि ये जो पेंडुलम है, इसका जो मूवमेंट है फ्रॉम दिस टू दिस, आई कैन यूज दिस एज द ऑसिलेशन, एंड आई कैन यूज दिस टू वर्क एंड अंडरस्टैंड द टाइम, और कैलकुलेट कर सकता हूं मैं टाइम इस पेंडुलम की हेल्प से. यहां तक खत्म हो गया. बट यहाँ पे इशू ये था इसके बाद कि ये जो पेंडुलम है ये काम कर रहा था उन जगहों पे जो स्टेबल जगह होंगी, जैसे आपका घर. बट ये चीज काम नहीं कर रही थी शिपिंग इंडस्ट्री में, कि जहां पे एक शिप जा रहा है समंदर में एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको पता करना है टाइम क्या हुआ. क्यों? क्योंकि उसको तीन चीजें चाहिए होती है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड द ऑल्टीट्यूड. तो वो ऑल्टीट्यूड सी लेवल की वजह से पता करेगा, वो लैटिट्यूड अपना मैप की वजह से या सन की पोजीशन की वजह से पता करेगा, और तीसरी चीज थी उसका टाइम, दैट इज लॉन्गिट्यूड. वो किस लॉन्गिट्यूड पे है अभी, उसको टाइम कैसे पता चलेगा. तो उसके लिए एक कारपेंटर आया जिसका नाम था जॉन हैरिसन. उसने एक चीज बनाई जिसका नाम था क्रोनोमीटर. क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर क्या काम करता था? क्रोनोमीटर was a better device which was to operationalize on ship. Even though ship was rocking, ship हिल रहा था पानी की वजह से, उधर इधर इधर उधर हो रहा था, but still this chronometer helped in, because it used two things. One was the force of gravity and another was the temperature change. इन दो चीजों की वजह से it could balance the time. ठीक है, एंड इट स्टार्टेड डेवलपिंग टाइम. एंड इसके बाद 19th सेंचुरी में हमने इलेक्ट्रिक क्लॉक्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और इलेक्ट्रिक क्लॉक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूज हुई वो था ये क्वार्ट्ज क्लॉक.
ठीक है, क्वार्ट्ज क्लॉक हमने समझ लिया, इसमें होता क्या है। क्वार्ट्ज क्लॉक में एक क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है जो यूज होता है, उसमें एक पीजो इलेक्ट्रिक करंट जाती है। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक करंट जाने के बाद वो क्रिस्टल जो है वो ऑसिलेट करने करने लगता है। दिस ऑसिलेशन इज रेजोनेटेड एज अ फ्रीक्वेंसी, एंड वहां पे एक एलिमेंट होता है जिसको हम रेजोनेटर बोलते हैं। वो रेजोनेटर इस जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, ये पीजो इलेक्ट्रिक करंट है जो आपकी उस बैटरी की वजह से निकलती है, वो पीजो इलेक्ट्रिक करंट उस क्रिस्टल पे जाती है। वो क्रिस्टल एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी की वजह से आपका रेजोनेटर काम करने लग जाता है, वो चलने लग जाता है। देन दिस ऑसिलेशन इज कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। ठीक है, एंड उस सेकंड्स को फिर डिजिटल डिस्प्ले आपको दिखाता है, दैट द ब्लिंक इन योर वॉच। ठीक है, या जो आपने पहनी होगी रिस्ट वॉच, उस पे वो ब्लिंक करने लगता है। और अगर आप आज के टाइम पे देखो तो वी हैव ऑल ऑफ दीज डिजिटल क्लॉक्स। ठीक है, और ये डिजिटल लेवल पे चीज चेंज होती है। बट ये सारे क्लॉक्स जितने भी आज तक हमने देखे, ये डेवलपमेंट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ द एक्यूरेसी। ठीक है, द ट्रिस्ट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि हमारे पास टाइम का कैलकुलेशन इतना ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए कि हम वी शुड नॉट मिस आउट अ मिलियंथ पार्ट ऑफ अ सेकेंड। बिकॉज ये हमें दिखता है कि 24 घंटे में 1 मिनट हमारा छूट भी गया तो हमें दिखेगा नहीं, बट साइंटिस्ट्स का मिलियंथ पार्ट ऑफ ए सेकेंड इफ इट मिसेज, देन प्रॉब्लम हो सकती है उनकी कैलकुलेशंस में। ठीक है, पर्टिकुलरली इन दी एस्ट्रोनॉमी वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए वी वेर ऑलवेज डेवलपिंग बेटर एंड बेटर क्लॉक्स। अब इलेक्ट्रिक क्लॉक्स डेवलप करने के बाद बारी आई थी एटॉमिक क्लॉक्स को डेवलप करने की। तो एटॉमिक क्लॉक्स को कैसे डेवलप करेंगे? देयर इज अ लेजर इक्विपमेंट जो काम करता है, विच एक्ट्स एज अ पावर सोर्स। जैसे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक क्लॉक में हम लोग क्या यूज करते थे? बैटरी यूज करते थे। ठीक है, आपका जब घड़ी बंद पड़ जाता है तो आप क्या बोलते हो कि इसकी बैटरी चेंज करानी है, इसकी सेल चेंज करानी है। वो सेल जो है वहां से जो पावर निकलती है वो यहाँ पे लेजर से पावर निकलती है। दिस लेजर acts as a power source, and then it signals द करंट जो यहाँ से निकलता है वो रेजोनेटर के पास जाता है। रेजोनेटर यहाँ पे है क्या? रेजोनेटर इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, बेसिकली एन आइसोटोप। अब समझ लो, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं है, न्यूक्लियर लेवल पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम्स है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट दे एटम्स डू इज दे रिलीज सम रेडिएशन because of the laser and the energy which is acting on these atoms, they release some radiation, और वो रेडिएशन हाई एनर्जी होती है। ठीक है, और उसकी वजह से अनदर ऑसिलेशन टेक्स प्लेस। और यहाँ पे जो हम यूज करते हैं एटम, ये जो हम यहाँ पे यूज करते हैं मिनरल्स एंड दी एटॉमिक क्लॉक में जो एटम्स यूज होते हैं वो सीजियम 133 एटम होता है, और इसी को हम यूज करते हैं एज रेजोनेटर। ठीक है, और इसी के ऊपर लेजर बीम पड़ता है और वहां से फिर ऑसिलेशंस जनरेट होती है। यहाँ से रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ये समझ लो, इतने हार्ट्स की होती है। मैं तो पढ़ भी नहीं रहा है कितने हार्ट्स की होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना है, सीजियम 133 एटम यूज करते हैं हम किसमें? एटॉमिक क्लॉक्स में। और एटम यूज होते हैं, कुछ और नहीं यूज होता। ठीक है, क्रिस्टल नहीं यूज होता एटॉमिक क्लॉक में, एटम्स यूज होते हैं। वो एटम्स जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जो रेडिएशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इसी एटॉमिक क्लॉक पे डिपेंडेंट है। और ये जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है ये सीजियम एटॉमिक क्लॉक पे डिपेंडेंट है जो हमने रखा हुआ है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में। क्लियर यहाँ तक? बट अब हम बना रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल क्लॉक्स। ये ऑप्टिकल क्लॉक्स क्या काम करते हैं? ये ऑप्टिकल क्लॉक्स दे वर्क ऑन द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन which is emitted in the clock। कैसे? जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक रेडिएशन क्रिएट करता है, रेडिएशन एमिट करता है, द माइक्रोवेव रेंज इज इन गीगाहर्ट्ज। ठीक है, बट जो ये क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक, इट इज बेसिकली लूजिंग अ सेकेंड ओनली वंस इन 20 मिलियन ईयर्स। ठीक है, दैट इट इज लूजिंग अ सेकेंड इन 20 मिलियन ईयर्स। जैसे मैंने आपको बोला ना, आपका जो क्लॉक है, आपका जो घड़ी है जो आपने हाथ में पहना है,
इट इज लूजिंग अ सेकेंड और अ मिनट इन 24 आवर्स। ठीक है, ये लूज कर रहा है, ये पीछे जा रहा है, फिर जब इसकी सेल खत्म हो जाती है तो हमें लगता है कि ये पीछे चला गया, खत्म हो गया। ठीक है, वो एक्चुअल में पीछे जा रहा है, आप लूज कर रहे हो सेकंड्स, बट हमें नहीं समझ आता। ठीक है, द पॉइंट हियर इज, यहाँ पे जो हमारे पास एटॉमिक क्लॉक है, इट इज लूजिंग अ सेकेंड इन 20 मिलियन ईयर्स। वी डू नॉट वांट दिस टू हैपन, इसीलिए हमने ऑप्टिकल रेंज क्लॉक बनाया जो टेरा हार्ट्स पे चलता है, नॉट की गीगा हार्ट्स पे। इट इज यूजिंग स्ट्रॉन्टियम और टेरिबियम एटम्स एज रेजोनेटर्स विच डू नॉट मिस अ सेकेंड इन 10 बिलियन ईयर्स। 10 बिलियन साल में भी ये एक सेकंड मिस नहीं करेगा। बट ये भी चीज इनफ नहीं है हमारे लिए, सो वी आर डेवलपिंग नाउ नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन क्लॉक्स। अब ये जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन क्लॉक्स है, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर क्लॉक्स। दीज न्यूक्लियर क्लॉक्स, दे आर वर्किंग एंड दे आर नॉट यूजिंग अ टोटल एटम या ग्रुप ऑफ एटम से यूज नहीं करते, बट ये एटम का एक स्मॉल न्यूक्लाई यूज करते हैं एज रेजोनेटर। ठीक है, रेजोनेटर इनने यूज किया और इसी को बोलते हैं देन फंक्शनल न्यूक्लियर क्लॉक। और ये यूज क्या करता है, ये थोरियम 229 का न्यूक्लाई यूज करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये एक्साइट करता है एनर्जी, देन डी एक्साइट करता है एनर्जी, और उसकी वजह से हमें समझ में आता है इसकी फ्रीक्वेंसी इज अराउंड 2020 टेराहर्ट्ज। ठीक है, इट हैज अल्ट्रा हाई प्रिसिशन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी लूज नहीं करेगा, ये भी कर सकता है लूज, बट वेरी हाई प्रिसिशन। ठीक है, बहुत कम लूज कर सकता है, लाइक मोस्ट प्रोबेबली 100 बिलियन ईयर्स में एक सेकंड लूज कर जाए। ठीक है, तो विद दिस वी conclude this discussion, but I believe there is one more editorial at the last, and that editorial was basically about the preamble of Indian Constitution. देखो, प्रियम्बल आप पढ़ लेना, प्रियम्बल के वर्ड्स वगैरह सब लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये क्या क्या बोलता है। बट यहाँ पे प्रियम्बल जो आपके सामने दिख रहा है, दिस इज द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। ठीक है, सबसे पहले समझना है इस प्रियम्बल में हमें देखना क्या क्या है। यहाँ पे चार जो है जानवर बने हुए हैं, चार जो है एनिमल्स का बना हुआ है चित्र। एक है बुल, दूसरा है एलिफेंट, तीसरा है टाइगर, और चौथा है हॉर्स। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, बट आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे दो स्वान्स भी है, ठीक है, और यू कैन कॉल देम पीकॉक्स। रेस्ट देयर इज दिस फ्लावर लोटस जो यहाँ ऊपर है। ठीक है, ये फ्लावर लोटस आप याद रख लेना, यहाँ पे है। बाकी सब जो चीजें हैं वो आप देख लेना। यहाँ पे जो सील यूज की गई है वो एलिफेंट सील है, और प्रियम्बल में ही सबसे नीचे जो इसके आर्टिस्ट थे जिन्होंने इसकी कैलीग्राफी की, ब्योहड़ राम मनोहर सिन्हा, उनका साइन भी है यहाँ पे। ठीक है, ये सब चीजें याद कर लेना, बस इतना काफी है। रेस्ट बाकी सब चीजें देख ली जाएंगी। एडिटोरियल यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, ये जो न्यूज आर्टिकल था, कि कुछ टेक्स्ट बुक से प्रियम्बल को हटा दिया गया है, प्रियम्बल का पेज पहले नहीं रखा गया है, बट बाकी सारी टेक्स्ट बुक्स में है। तो नॉट टू पोलिटिसाइज बट टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रियम्बल इज एक्चुअली सिग्निफिकेंट फॉर अस। ठीक है, लास्ट में वी डू डिस्कस, आई डोंट बिलीव दैट वी कैन डिस्कस दिस बिकॉज हाई टाइम। ठीक है, आई थिंक आई विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है, ये जो केस है 77 कास्ट्स का इन द ओबीसी लिस्ट, बेसिकली यहाँ पे बात ये है कि एक्चुअल में प्रियम्बल, ये जो ओबीसी लिस्ट है, इसमें एडिशन कैसे होता है और एडिशन करता कौन है। अगर आप अभी देखो तो हमारे पास यहाँ पे वी हैव एनसीबीसी। ठीक है, विच इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एंड इट रिसेंटली इन द पास्ट this is the body which approves the inclusion of different castes into the state list, ठीक है, और the OBC list। तो OBCs, they are basically socially and educationally backward classes। ठीक है, socially and educationally backward classes। ठीक है, they are defined, their inclusion and exclusion is defined by the concept of creamy layer, जो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी। एनसीबीसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इट एग्जामाइंस द रिक्वेस्ट्स फॉर इंक्लूजन ऑफ कास्ट इन सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। यहाँ पे वेस्ट बंगाल ने पिछले बहुत टाइम से, और इससे पहले भी ऐसा हुआ है, कि वो जो है माइनॉरिटी
पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटी को ओबीसी लिस्ट में डाल रही है। वहां पे बहुत ही ज्यादा अराउंड 77 कास्ट से ऐसे जिनको ओबीसी लिस्ट में डाला गया है। ठीक है। So the constitutional provisions which we already have discussed in the reservation video also, रिजर्वेशन पे जब हमने डिस्कशन किया था द हिंदू के पेपर में, तो उस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया अबाउट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4. We already have seen that there are multiple provisions which government of different states have taken in order to establish these lists and in order to promote the welfare of these OBCs. एनसीबीसी का अगर आप देखो तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जो 2018 में आया, which provided for the constitutional status for NCBC. It basically has authority to examine the complaints. It has authority to examine the complaints of welfare and measures of these socially and educationally backward classes. It earlier was a statutory body and it earlier used to work under Ministry of Social Justice and Empowerment. ठीक है. If you see, it was basically Kaka Kalekar Committee and BP Mandal Commission in 1950 and 1960, which who were appointed at that point of time for these backward classes. So one was Kaka Kalekar Committee, जिसके recommendations आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, for these backward classes and for the benefits of this scheduled caste and scheduled tribes both. लेटर इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 का, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी थी अबाउट क्रीमी लेयर एंड upholding of the 27% reservation which was recommended by the Mandal Commission. And further, if we see the 123rd Constitutional Amendment Act आया था, which introduced the safeguards which should be adopted for backward classes. ठीक है, so there are some points. And NCBC में if you see there are, I guess, एनसीबीसी में जो मेंबर्स होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, अ चेयरपर्सन, अ वाइस चेयरपर्सन एंड 3 और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर्स which are appointed by president. ठीक है, under the warrant of his under his warrant of hand and seal. ठीक है, तो इनका टेन्योर और इनका सर्विस of office, it's all determined by president himself. Lastly, we do have this question. I just want you to understand this question का जो basic brainstorming आपको करना पड़ेगा, that is around the living instrument of constitution, that whether constitution is a dead letter or it's a living instrument, whether constitution should be contextual or it should be textual in its nature. ये आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना होगा। इसके साथ साथ whether it should be a living instrument or is it a living instrument actually or not, to adopt to the dynamism of the society. And if you see recent से भी recent judgments जो आ रहे हैं, that is जो अभी right to climate or right against climate change is also one of the fundamental rights which is declared by the Supreme Court recently. So that is how we can uh, write down about the dynamism of constitution being a living document. Constitution made for a progressive society. Yes, our constitution is made for progressive society. That is why this progression is highlighted in the nature of the constitution being a living instrument, because it provides for the amendment process under article 368. It also provides for the interpretation and the interpretative jurisprudence of the constitution under article 32, article 226, and the powers which are given to the judiciary at all. Being the guarantor and the interpreter of the constitution. You also need to illustrate with special reference to the expanding horizons of the right to life and personal liberty, जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया, राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, राइट टू प्रिवेसी जो इस बार यूपीएससी ने पूछा था। ये सारी चीजें आप इसमें डिस्कस कर सकते हो इस क्वेश्चन में, और ऐसे ही इसको डिस्कस करना है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम इंट्रोडक्शन बॉडी सम डिफरेंट केसेस, सरला मुदगल केस, जिसमें दिस आर्टिकल 44 पे जजमेंट हुआ था,
इसके साथ-साथ that Article 44, 25 and 26, how they have this uniformity, how there should be harmonious relationship between the rights and the DPSPs. Further, Menka Gandhi case, Sabrimala case, LGBTQ case. You can also talk about the Puttaswamy judgment. You can also talk about the Navtesh Singh Johar case. ये सारी cases आप discuss कर सकते हो इस question में. With this, I wish you all the best. Thank you for joining in here.